So class 11th, I will start today public enterprises, public utilities and public-private partnerships. So government ownership and control of business enterprises has become a common feature in every country. In Indian public sector has achieved commanding position in several industries. During the last 50 years, public enterprises have let down the base for heavy and basic industries. These enterprises have created the infrastructure for the rapid industrialization of the country. Public sector is serving as an instrument for attaining the economic and social objective the state has let down in the constitution of the India. इंडस्ट्री क्या है कि इंडिया का एक पार्ट, इंडिया में बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट दुनिया भर के टैक्स कमाती है। गवर्नमेंट की भी पर्सनल इंडस्ट्री होती है और गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर्स रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है और उसके बाद प्राइवेट का रहता है। तो होल्डिंग सबसे ज़्यादा किसकी है? गवर्नमेंट की, ठीक है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस: ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट are the called public enterprise or public undertakings or public sector undertakings. These enterprises are known collectively as the public sector. Characteristics: a careful analysis of the above definition reveals the following characteristics of public enterprise. State ownership: a public enterprise is wholly owned by the central government or state government. जो गवर्नमेंट कंपनी रहती है, जिसको हम पब्लिक कंपनी भी कहते हैं, ठीक है, सो वो पब्लिक इंटरप्राइजेज होली ओन्ड बाय द, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होगा या स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होगा उसमें, ठीक है। सो और लोकली अथॉरिटी और ज्वाइंटली ओन्ड बाय टू और मोर ऑफ देम, ठीक। In case the enterprises is owned by both by the government and private sector, the state must have at least 51% stake in shares in ownership. जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं उसमें गवर्नमेंट कंपनीज की जो होल्डिंग होनी चाहिए उसके पास 51% शेयर होने चाहिए, ठीक है, और 49% आउटसाइडर्स होने चाहिए। अगर दो कंपनियां मिलकर एक साथ काम कर रही हैं जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल है, ठीक है, यानी 51% उसके शेयर्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूरा उस पर पूरी होल्डिंग जो रहेगी वो गवर्नमेंट की ही रहेगी, ठीक है। स्टेट कंट्रोल: द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज लाइज विद द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स इट्स बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कि द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज लाइज विद द गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स its board of directors and chief executives. Government financing: the whole of or a major portion of the capital of a public enterprise is provided by the government. जो कैपिटल होती है वो कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डिंग शेयर मार्केट में उन्हीं की है, ठीक। सर्विस मॉडल: द प्राइमरी एम ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज टू रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी एट लार्ज. इट मे हैव इवन टू incur loss for the purpose. However, public enterprises are expected to generate surplus in course of time. So, public accountability: public enterprises are financed out of a public money. Therefore, they are accountable for the results to the elected representative of the public, that is to say, the parliament and state legislature. That is why the working of public enterprises by the committees of the parliament or state legislature. नेक्स्ट है हमारे पास कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज और पब्लिक एंटरप्राइजेज का डिफरेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव: प्राइवेट एंटरप्राइजेज are motivated primarily by consideration of profit. Therefore, these enterprises operate mainly in those areas of economic activities which offer regular and steady return on capital investment. On the other hand, public enterprises are guided by several socio-economic and political objectives. देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनियां रहती हैं
पूरी तरीके से एक तो उन पर गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं रहता है, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सारे जो होते हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो सारे प्राइवेटली होते हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऐसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में 51% शेयर होल्डिंग किसकी रहती है, गवर्नमेंट की रहती है। तो ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेज आर गाइडेड बाय सेवरल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। दे कवर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेशन with little regard for consideration of profit. Ownership. A public enterprises is owned by central government and or more state government, या तो सेंट्रल करेगी या स्टेट करेगी। कभी कभी क्या होती है, कंपनीज में भी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती है, कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का लगा होता है कैपिटल, ठीक है। सो वो भी एक जॉइंटली तरीके से काम कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में। अब पब्लिक एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट आइदर सिंगली और जॉइंटली। On the contrary, the ownership of a private enterprise is based in one or more private individual or corporate bodies. Management. A private sector enterprise is managed by its owners, but public sector enterprises में क्या है कि जो owners होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट का पार्ट जो अपॉइंट करता है वो करती है गवर्नमेंट, ठीक है। The management has to abide by the guidelines laid down by the owners. However, there is enough scope of initiative and dynamism because policies to be modified or ever discarded according to the requirements of the particular situations. So next point, capital. The entire or majority capital of a private enterprise is contributed by the private investors, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे वही पैसा लगाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में केवल गवर्नमेंट का पैसा लगा रहता है। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट। इन अ प्राइवेट एंटरप्राइजेज द ओनर्स आर फ्री टू मैनेज एंड कंट्रोल द अफेयर्स विद अ लिटिल इंटरफेरेंस, बट अ पब्लिक एंटरप्राइजेज फेसेस कंटिन्यूस इंटरफेरेंस फ्रॉम सेवरल एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। जो फ्रीडम फ्रॉम मैनेजमेंट की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर में अगर हमारा बिजनेस है तो हम खुद अपना डिसीजन लेंगे और जिसको हमको रखना है उसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट की अथॉरिटी वो वहाँ पे मैनेजमेंट में पूरे तरीके से फ्री रहते हैं प्राइवेट सेक्टर। लेकिन जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, पब्लिक इंटरप्राइजेस की, तो कोई भी मैनेजमेंट की पार्ट होगी, मिनिस्ट्रीज़ के पार्ट होगा, पॉलिटिशियंस होगा, तो कई सारी चीज़ों से हमको होके गुजरना पड़ता है। कोई भी काम करना हो और बहुत सारी पेपरबाजी भी बढ़ जाती है, तो जिससे हम कह सकते हैं पेपरलेस वर्क होता है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेपर की बात करें तो हमें अगर गवर्नमेंट से कोई भी डिसीजन लेना हो पहुंचने के लिए तो लेटर लिखो, फैक्स करो, फिर वो कब तक जवाब आएगा, फिर वो अपॉइंट करेंगे, कब अपॉइंट करेंगे ये पता नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अपॉइंटमेंट तुरंत हो जाता है, ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। अब प्राइवेट इंटरप्राइजेस कैन ईजिली मॉडिफाई पॉलिसीज एंड ऑपरेशन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ any specific situation. There are few restrictions of its owners for attaining the objects and policies of the enterprise. Area of operations की बात करें, private enterprises is ready to venture out into any field of investment. Clear? Whereas steady at reasonable returns are exempt, but the public enterprises operate mainly in the field of basic and strategic industries, public utility service, and other areas of social benefit. So tomorrow I will discuss regarding the objectives of public enterprises. What is public objectives? Economic development, self-reliance, development of backward areas, employment generation, economic surplus, and consumer welfare, public utilities, defense, and labor welfare. So tomorrow I will discuss this thing. So thank you, class.